Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to describe you class 12 biology chapter 8 human health and diseases. As you all know, in previous video lecture and live classes I have described you the different kinds of communicable diseases. There are viral diseases, bacterial diseases, protozoan diseases, helminth diseases, that is also known as worm diseases, and fungal diseases. Viral diseases, all about viral diseases is over in previous video lecture. All about bacterial diseases is over in previous video lecture. The key bacterial diseases are typhoid and pneumonia. The both typhoid and pneumonia are actually over during the live classes, during the live session. In this video lecture I will describe you the protozoan diseases, amoebiasis, that is known as amoebic dysentery. Protozoan diseases, malaria is over in previous video lecture, that need to know, that is very important. Later after the amoebiasis I will describe you the nematode or helminth diseases, and later the fungal diseases. Now back to whiteboard in order to understand the concept of amoebiasis. Now the protozoan diseases, amoebiasis, it is second. Amoebiasis, it is second. The first one was malaria, that is over in previous video lecture, and the life cycle of malarial parasites like the pathogens is over. Now in this video lecture I will describe you the amoebiasis, that is also known as amoebic dysentery. Amoebic dysentery, and it is very important and very short. There is no life cycle in this syllabus, but you need to know whatever the mode of infection and the symptoms of the diseases. Actually, first of all you need to know the causative agents of amoebiasis. CA, causative agents, Ant amoeba histolytica. Ant amoeba histolytica. Ant amoeba histolytica, HI. Ant amoeba histolytica is the causative agents, that is the type of protozoan that is causative agents for amoebic dysentery or amoebiasis. Now back to the next, that is symptoms. Symptoms. The shape and size of ant amoeba is similar to the common amoeba, as you can see in the microscopic view or in the different kinds of books. Now back to the symptoms. Actually the symptoms of amoebiasis is, first symptoms is actually the abdominal pain. Abdominal pain, that is the first key symptoms. That is the amoebic dysentery begin from abdominal pain, and later it will become lethal if there is no any precautions taken out by the patients, or there is no any medication taken out by the patients. यानी कि ये तब जाकर के लीथल होगा, डेथ करेगा, जब पेशेंट जो है कोई भी प्रिकॉशंस या कोई भी मेडिकेशंस नहीं ले रहा है. ठीक है. एब्डोमिनल, अपार्ट फ्रॉम एब्डोमिनल पेन, द इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. इंटेस्टाइनल bleeding. Intestinal bleeding is one of the second important symptoms. Then that bleed will released out from the fecal material, that is actually called as the stool. Stool with blood. Stool with blood. Fourth one is the cramp. Abdominal cramp. Cramp means होता है ऐठन, मरोड़ना. ठीक है. So these are some important symptoms. Appetite loss is another additive symptoms of common types of diseases, that is the common type of symptoms in all kinds of diseases. So abdominal pain, intestinal bleeding, stool with blood, and abdominal cramps are some of the important symptoms of amoebiasis. Sometimes along with blood, mucus also released out. So stool with blood and mucus is the one of the key symptoms, that is key features of the fecal materials that are the patient that infected by the ant amoeba histolytica. Now back to the mode of infection. Mode of infection. Actually there is a mechanical carrier, housefly. Housefly when trap the
amoeba and amoeba histolytica from the fecal materials of patient, then it will able to transfer to the next healthy food of the person of a healthy food. It means the healthy person may affected through the housefly. So housefly may be act as the कैरियर और मैकेनिकल कैरियर फॉर द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. ये आपको जानना है. इसमें मोड ऑफ इन्फेक्शन हाउस फ्लाई ही कैरियर का काम करता है. किसका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का. और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी फैलाता है? अमीबियासिस. ठीक है. तो इसका जो कंटेमिनेटेड जो इसका मेन जो है मैकेनिकल कैरियर है वो हाउस फ्लाई है. ठीक है. और ये कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर से भी ये फैलता है. ठीक है. आल्सो फ्रॉम कंटेमिनेटेड, लिख लेना सब, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. ये दिमाग में आपके होने चाहिए. ठीक है. नाउ बैक टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट communicable diseases, that is diseases that occurs through the worm diseases or helminth diseases. Fourth one is worm diseases or helminth diseases. Keep in mind the fourth one. First one was viral, second bacterial, third one was protozoan, and fourth is worm or helminth diseases. Helminth are belong to phylum Nematoda. So basic key pathogens of worm or helminths are the basic key disease are Ascariasis, and second one was Filariasis. It is earlier introduced by me, but in this topic, in this video lecture, you will study about the detail for the helminth diseases or worm diseases. फाइलेरियसिस, इसको फाइलेरिया बोलते हैं, और ये एस्केरियसिस है. तो पहला हेडिंग क्या रहेगा? एस्केरियसिस. एस्केरियसिस. फर्स्ट helminth disease is Ascariasis. Listen carefully. The basic key symptoms of Ascariasis is the abdominal pain, same as the ant amoeba histolytica, same as the amoebiasis. Abdominal pain is the key features. Constipation, write down constipation. Constipation. Blocked intestinal passage. Intestinal passage is one of the most important symptoms. पूरा इंटेस्टाइन ही क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है. ठीक है. क्योंकि उसमें क्या भर जाता है? एस्केरिस के जो लार्वा है, एस्केरिस के जो यंग वन है वो भर जाते हैं. ठीक है. कॉजेटिव एजेंट्स एस्केरियसिस का एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस. नोट कर लो कॉपी में. एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस ये कॉजेटिव एजेंट है. एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस. ठीक है. एस्केरिस ये एस्के हेलमिंथीस फाइलम का एक इम्पॉर्टेंट एनिमल्स है. ठीक है. ये आप 11th में पढ़े होंगे. तो ब्लॉक्ड इंटेस्टाइन पैसेज क्यों होता है? कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है. बिकॉज ऑफ हैविंग लार्वा एंड यंग वन ऑफ एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइडिस. ठीक है. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसमें सिम्टम्स ये भी, इसमें एनीमिया भी काज होता है. ठीक है. Anemia is one of the most important symptoms that are uncommon from amoebiasis, and these are some important key symptoms. और इसके अलावा बाकी आप कॉमन सिम्टम्स सभी बीमारियों के बारे में जानते हैं. ठीक है. अब आते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन में. ये जो है एक्चुअली इसका कोई मैकेनिकल कैरियर तो नहीं है, बट ये कंटेमिनेटेड फूड, वेजिटेबल्स एंड वाटर से फैलता रहता है. ठीक है. वाटर इसमें यूज नहीं होता है. बस मोड ऑफ इन्फेक्शन लिख लीजिए कॉपी में. नो मैकेनिकल कैरियर. इट इज स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड, fruits, and sometime if the egg of Ascaris are available in soil and it is fed by the child, then the child may affected by the Ascaris lumbricoides and may be affected, maybe suffers with the Ascariasis. तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना. ठीक है. मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर्स. बेसिक सिम्टम्स क्या है? एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉक्ड इंटेस्टाइनल पैसेज, एनीमिया. एनीमिया इसको
एस्केरियोसिस एनीमिया बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और अब आते हैं फाइलेरियोसिस। सेकेंड, फाइलेरियोसिस, इसको एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, बिकॉज द लोअर लिम्स आर गेट अफेक्टेड एज लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट, सो समटाइम इज नोन एज एलिफेंटिएसिस। हाथी के पैर जैसा पैर हो जाता है, इसमें फूल जाता है, ठीक है, और ये परमानेंटली हो जाता है शुरुआत में अगर इसको केयर ऑफ न किया जाए, ठीक है। तो इसका जो बेसिक की फीचर्स है, की सिम्टम्स है जिसको बोलते हैं सिम्टम्स, उसको पहले पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स, स्वॉलेन लोअर लिम्स, ये इसका की फीचर्स है, इसको आप जान लीजिए, स्वॉलेन लोअर लिम्स। और अर्लियर ये क्या हो जाता है, शुरू में स्टार्टिंग में फीवर वगैरह भी होते हैं, बाद में फीवर सही हो जाता है, लेकिन ये पैर फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन इन लिम्फ नोड, इन्फ्लेमेशन इन लिम्फ नोड, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यानी हमेशा रहने वाला इन्फ्लेमेशन, ठीक है। कभी कभी हाथ भी अफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली क्या अफेक्ट होता है, लोअर लिम्स, यानी कि दोनों पैर जो है फूल जाते हैं। डायग्राम आप देख लीजिएगा बुक से, ये एग्जाम में कभी कभी बुक का डायग्राम ही देता है, पूछता है कि आइडेंटिफाई द डिजीज एंड काजेटिव एजेंट्स। तो हाथ पैर अगर फूला हुआ है तो वो क्या है, फाइलेरियोसिस है, ठीक है। काजेटिव एजेंट्स में आते हैं। और इसके अलावा कभी कभी देखो, इससे बड़ी प्रॉब्लम में तो ऐसा नहीं कि इंसान मर जाता है, नहीं, इससे थोड़ा सा क्या हो जाता है, ग्रॉस डर्मेटाइट, ये थोड़ा सा भद्दापन आ जाता है, होल पूरी बॉडी जो है, ग्रॉस पूरी बॉडी ही जो है, डिफॉर्माइटिस बोलते हैं, ग्रॉस डिफॉर्माइटिस, वो पूरी की पूरी बॉडी ही अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। ये आप अपने मन से लिख लीजिएगा, ग्रॉस डिफॉर्माइटिस, इसका मतलब भद्दापन होता है। ये थोड़ा सा शरीर देखने में बेकार लगता है, लाइफ टाइम इसके पर्सन जिंदा रहते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, पेन वगैरह कुछ नहीं होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, पहले तो इसका जान सबसे इंपॉर्टेंट है इसका क्या जानना, पैथोजन जानना, ठीक है। तो इसके जो 2 पैथोजन्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है। नेम 2 काजेटिव एजेंट्स ऑफ फाइलेरियोसिस। फर्स्ट काजेटिव एजेंट्स इज वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, and second causative agency is Wuchereria malai, MALAYI, मलई, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये 2 कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचेरेरिया मलई। और ये मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो इसको फैलाता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये कॉमन टाइप ऑफ मॉस्किटो है। जब आपके एरिया में कोई फाइलेरिया का पेशेंट है, उसको ये बाइट किया और ये किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो उसका एग और उसका लार्वा ट्रांसफर कर देता है, ये चांस होता है फैलने का, ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं रिंग वर्म, यानी कि फंगल डिजीजेस के बारे में आते हैं, फंगल डिजीजेस के बारे में आते हैं। 5th वन, फंगल डिजीजेस, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद ये जितने भी डिजीज है वो खत्म हो जाएंगे, नेक्स्ट जो होगा वो इम्यूनिटी बच जाएगा, उसको मैं नेक्स्ट लाइव क्लासेस से शुरू करूंगा, ठीक है। फंगल डिजीजेस में सबसे जो कॉमन डिजीज होता है वो रिंग वर्म, इसमें एक ही डिजीज है, पढ़ना है, रिंग वर्म। रिंग वर्म, ठीक है, इसको दाद खाज खुजली बोलते हैं, दाद बोलते हैं, ठीक है। इसके पैथोजेंस की मैं बात कर दूं तो लिख लो कॉपी में, पैथोजेंस और कॉजेटिव एजेंट्स किसके, रिंग वर्म के। ट्राइकोफाइटॉन, ये फंगल है, फंगस है, ट्राइकोफाइटॉन, TRICOPHYTON, ट्राइकोफाइटॉन। माइक्रोस्पोरम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम। एपिडर्मोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है। तो ये कॉजेटिव एजेंट्स हैं जिससे क्या फैलता है,
रिंग वर्म फैलता है। बेसिक सिम्टम्स क्या है रिंग वर्म का? इचिंग। सिम्टम्स क्या है? इचिंग दैट स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, स्किन इचिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ड्राई लेसन, ड्राई स्केली लेसन, लेसन मीन्स होता है धब्बा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ हो जाएगा? ये पूरा का पूरा जो है हमारा स्काल्प है, ठीक है, बाल वगैरह पे हो जाएगा, स्किन पे कहीं भी जहाँ पे खुजली होगा स्किन पे हो जाएगा, ठीक है। रेड वाइट पैच बनते हैं और ये इंटेंस, ये टोज पे होते हैं, जहाँ जो सबसे गीला रहने वाला पार्ट है टोज, ठीक है। इसके अलावा फोल्ड्स ऑफ बॉडी, जहाँ जहाँ बॉडी के फोल्ड्स हैं वहाँ ये ड्राई स्केल लेसन्स बन जाते हैं। ये बाद में रेड हो जाते हैं, रेड वाइट हो जाते हैं। दीज लेसन्स आर एक्चुअली स्प्रेड आउट एज पर द इचिंग। जितना खुजलाएंगे ये लेसन्स बढ़ते जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंगल डिजीजेस, ठीक है। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन मैं बता दे रहा हूँ। मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो ये कॉन्टिन्यूअस इचिंग से फैलते हैं, साथ ही इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ्स, टॉवेल, ये सब किसको इन्फेक्टेड पर्सन उसका कपड़ा, क्लॉथ्स, अगर टॉवेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये फैल जाते हैं, ठीक है। सॉइल से भी फैलते हैं, इन्फेक्टेड सॉइल से भी फैलते हैं। यानी बॉडी को पूरा पूरा क्या करना है? ड्राई करके रखना है। अगर बॉडी थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहे तो ये फैलते जाते हैं, फैलते जाते हैं। सो दीज आर द सम कॉमन infectious diseases that is over. In next video lecture I will describe you the immunity. Thank you.